اس کو اپنا اصلاح بھی ہوتا ہے، تو اپنا فکر مند ہوتا ہے بندہ آخرت کے لیے کہ یار مجھے دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ ایکسٹرا آرڈنری کاوش ہے دعوت اسلامی کی، الحمدللہ دعوت اسلامی میں تو ہے ہی ینگسٹرز دعوت اسلامی کو زیادہ لائک کر رہے ہیں، اور زیادہ تر جو تعداد ہے وہ بھی ینگسٹرز کی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی ان کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر رہی ہے۔ شروع میں تو ان کو ایسا لگا کہ نا بھئی یہاں پر آ کر نا کہ بھئی تھوڑا سا ایک نیا آتا ہے کہ بھئی عجیب سا لگا، پر جب یہاں کا ماحول جب دیکھا تو انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کیا، اور اب بڑے خوش ہو رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں کے ماحول سے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ نا جب اگر نا کال کرتے تھے تو بیٹا ہے نا سلام جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ نارمل سلام، تو جی کر دیتے تھے، جی پپا۔ تو جب سے یہاں سے ابھی رابطہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। میں گھبرا گیا تھا، میں کیسے سروائیو کر پاؤں گا یہاں پہ، کیسے رہ پاؤں گا، کیونکہ میں پہلی مرتبہ گھر والوں سے اتنا دور آیا ہوں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ نیک لوگوں سے ملتے گئے، دل بنتا گیا، نئی نئی باتیں سیکھتے گئے دین کے مطابق، ایسے ارادہ بنتا گیا۔ ماشاءاللہ ایک قسم کی روٹین بن گئی ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق و چاشت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک قسم کی روٹین بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ جا کے بھی ہم یہی روٹین برقرار رکھیں گے۔ اب تک کی سب سے اہم ترین بات یہاں یہی ہے کہ ایک مطلب دل کو سکون مل رہا ہے کہ بندہ دل کرتا ہے کہ بندہ واپس ہی نہ جائے۔ رونا آتا ہے، پچھلا جو ہے نا میں نے ماضی بہت یعنی کہ ٹائم بہت گزار دیا، ابھی لگتا ہے کہ میں حقیقت کی زندگی میں ہوں۔ اس سے پہلے کبھی ایسا ذہن نہیں تھا، اب احساس ہو رہا ہے کہ والدین کی کس طرح اطاعت کری جاتی ہے۔ نگرانی شورا کے بیان میں جو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ اس کے اندر ہے۔ پہلے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ واپسی چل رہے ہیں، لیکن جب ادھر پہ تھوڑے دن رہے تو مزہ آنے لگا، اور اس کے اندر اچھا ماحول ملا، سیکھنے کو بھی اچھی چیزیں ملی، بیان کے اندر مزہ آیا، مدنی مذاکرہ سنا، تراویح، ہر چیز میں مزہ آنے لگا۔ پہلے ہوتا ہے کہ یار جلدی جلدی رمضان المبارک گزرے، عید آئے تو ہم اپنی سیر و تفریح کریں۔ یہاں پہ آئے ہیں تو بس یہ کہتے ہیں کہ رمضان گزرے ہی نہ یار، ساری زندگی یہاں پہ پڑے رہیں۔ پہلے میرا رمضان ایسے گزرتا تھا، رات میں کرکٹ کھیل لیں، میچ چل رہا ہے، لیکن اب یہاں پر آئے تو صرف مسجد میں، اللہ کے کاموں میں، تو یہ شیڈول زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ اس دن بیان سنا ان کا، اس کے بعد پھر میں نے اپنی والدہ کو کال کی، مولا میں نے بہت آپ کی جو ہے نا دل آزاری کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ ان سے معافی مانگی، اپنی دادی سے مانگی، ابو سے مانگی، سب سے مانگی، پھر سکون آیا۔ جو موٹیویشنل جو بیانات ہیں، جو قصے بتائے جاتے ہیں، جو قرآن پاک کا بتایا جاتا ہے کہ انہیں آپ صحیح طریقے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ، جس طرح مدنی جو قاعدہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہماری قرآن پاک ساری کی ساری صحیح ہو رہی ہے، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کا جتنا بھی احسان مانا جائے کم ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ جو ہمارے جو ایسے نوجوان ہیں جو یہاں تک پہنچ نہیں پائے، بس دعا یہی ہے کہ وہ یہاں پر آ جائیں۔ ਵਾਰਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਾਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੋ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ। یہاں پہ آ کے جو رونق دیکھی ہے وہ ساری ہماری تھکان جو ہے نا دور ہو گئی ہے الحمدللہ۔ جو یہاں پہ سکون ہے، جو ماحول ہے، بہار ہے، یقین مانے سمجھ نہیں آتی یہ یہاں پہ ہے کیا، دل لگ گیا ہوا ہے۔ تو اب تو ویسے بھی جانے کو دل نہیں کرتا جی۔ الحمدللہ ادھر آ کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے اور کیسے مینج کر رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو مطلب ان کی مینجمنٹ ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، بڑے اچھے پرسکون انداز سے، بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے مینجمنٹ بنائی ہوئی ہے اپنی، اور وائنڈ اپ کرتے ہیں ہر چیز کو اور بناتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہے میرا۔ میں ابھی ہمارے نگران صاحب کو بتا رہا تھا کہ میرے ریسٹورنٹ پہ نا 40 بندے کام کرتے ہیں، تو ان کو سنبھالنا، ان کو مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پہ تو ایک دنیا بسی ہوئی ہے۔ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਅਗਲੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਡਈ ਆਣ ਕੇ۔ دل نہ لگنے کی مین وجہ کیا سی سمجھ میں آ رہی جو
अकेले सोने की आदत थी, अकेले बैठने की, उठने की, सुकून से रहने की आदत थी। यहाँ पे सारे इस्लामी भाई साथ साथ हैं, हल्के में चलना पड़ रहा है, निगरान की माननी पड़ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ती गई तो वही शेड्यूल अच्छा लगता है। अपनी आम जिंदगी में भी वही शेड्यूल लाने का दिल करता है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो है ना रमजान के अलावा, इत्तिकाफ के अलावा भी अपनी जिंदगी ऐसे गुजारूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ, इत्तिकाफ की नियत न की हो तो कर लीजिए। मदनी मुज़ाकरे की कुछ अच्छी अच्छी नियतें शामिल कर लीजिए। जितनी नियतें ज़्यादा उतना सवाब ज़्यादा। मदनी मुज़ाकरे में रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा, अपनी इस्लाह का सामान करूँगा। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम मुसाफा करने और इनफरादी कोशिश करने वगैरह की सआदत हासिल करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 1447 हिजरी के रमजान करीम की 18वीं रात है। इस मुनासबत से ज़िया दुरूद सलाम से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 18। अल्लाह पाक की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम यानी आपस में मिलें और मुसाफा करें यानी हाथ मिलाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में कसीर मुतकीफ़ीन और आशिकान रमज़ान जमा है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज मैं मौजूद हूँ फांसी घाट पे। धोबी घाट को फांसी घाट क्यों कहा? अदब का सिलसिला मज़नी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मज़नी मुज़ाकरा। इंशाअल्लाह करीम 11:15 बजे। सोशल मीडिया पर सुलह से मुतालिक एक बात लिखी थी कि हमारे माशरे में सुलह की बैठक का मकसद कमजोर को अपना हक छोड़ने पर मजबूर या राजी करना होता है। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
अल्लाह अकबर। हो सकता है ऐसा भी होता हो कहीं, वैसे है तो ज़ाहिर है ये तो गलत है। सुलह में तो हर हक से हटना तो फिर सुलह नहीं हुई, नहीं तो कुछ और ही हुआ। तो सुलह तो कुरान करीम में इसकी पजीर आई है और फरमाया गया वस्सुल्ह खैर, कि सुलह में भलाई है। और यहाँ सुलह जिसको नाम दिया गया सुलह की बैठक, तो उसमें तो ये बुराई है, भलाई नहीं है। तो ऐसा करना ये तो बिल्कुल जुल्म है। एक कमज़ोर को दबा देना और उसको अपना हक छोड़ने पर मजबूर या राज़ी करना, ये तो जायज़ है ही नहीं। ज़ाहिर सुलह करना, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह करवाना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे बन पड़े वो सुलह करवा, इसके बड़े फ़ज़ाइल है, सवाब का काम है कि दो बिछड़े हुओं को मिला देना, जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देना, तो ये तो बड़े दर्जे का काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यहाँ मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी और इस मामले में वजाहत हो कि जो सुलह कराने के लिए बैठे हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी भी बनती है कि वो मतलब किस तरह से इस मामले को टैकल करें? क्योंकि ये बात जो लिखी है, ये महसूस होता है कि इस तरह एक बड़ा सिलसिला बनता है इसी तरह का, यानी जो करने वाले हैं वो बाज़ इसी तरह के टारगेट पे बैठते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सुलह करने बैठे हैं, बड़े बनकर जो बैठते हैं, तो इनकी इस मामले में क्या एहतियात होनी चाहिए? वाकई सुलह करवाने वाले को तो पहले सुलह करवाना आता भी हो और खुद ही गुस्से वाला हो तो लड़ पड़े तो सुलह कैसे करवाएगा? और फरीक़ैन में से किसी की तरफ उसका मेलान और झुकाव ना रहे, जो भी बात हो वो हक बात करे और हक फैसला करे। तो ये हर एक का काम नहीं होता। बाज़ औक़ात यानी कि ऐसे लोग बैठ जाते हैं कि जिनको कुछ इतना पता नहीं होता और वो किसी की रूह रियायत कर देते हैं, मुरुव्वत में कोई गलत फैसले भी कर देते होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आलिम दीन हो वही सुलह करवाए, इतनी शुद्ध बुद्ध हो कि वो मतलब है कि सुलह करवा सकता हो और इतनी मालूमात हो कि इसको मतलब यानी कि गलत बात की तायद नहीं करनी, हक बात जो करता है उसकी मुखालफत नहीं करनी, उसकी काट नहीं करनी। तो इस तरह अगर दुरुस्त तरीके और सुलह करवाएगा तो सवाब का हकदार होगा कि अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें रोजा नमाज और सदक़े से भी अफजल अमल ना बताऊं? साहिबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर इरशाद फरमाइए। फरमाया, वो अमल आपस में रूठने वालों में सुलह करा देना है, क्योंकि रूठने वालों में होने वाला फसाद भलाई को खत्म कर देता है। हवाला अबू दाऊद जिल्द 4 सफ़ा नंबर 365 हदीस नंबर 4919। तो सुलह करवाने की बड़ी अहमियत है। एक और हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह करवाएगा अल्लाह पाक उसका मामला दुरुस्त फरमा देगा और उसे यानी सुलह करवाने वाले का मामला दुरुस्त फरमा देगा और उसे हर कलमा बोलने पर यानी हर कलमा यानी कामिल लफ्ज जो होता है, समझो कि सेंटेंस दोबारा लेके, और उसे हर कलमा बोलने पर एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। और जब वो लौटेगा तो अपने पिछले गुनाहों से मगफिरत याफ्ता होकर लौटेगा। सुलह करवाना बड़े दर्जे का काम है। जिसको सुलह करवाने की मतलब यानी कि कोई तरकीब हो, करवा सकता हो, तो इससे मुमकिन हो तो कतराए नहीं बल्कि सुलह करवा दे। दो मुसलमानों में, दो रूठे हुए भाइयों में, दो रूठे हुए खानदानों में, दो रूठे हुए कबीलों में
सुलह करवा दे। बड़े बड़े कबीलों में भी तो जंगें हो ही रही होती हैं, तो मुसलमानों के कबीले होते हैं। जैसे पहले वो दौरे जहालत में कुफ्फार लड़ते थे तो अमन तो रहा कुछ अरसा, फिर इसके बाद आहिस्ता 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 फसाद आ गया। और अब ये कि उन्हीं की तरह कबीले आपस में लड़ते हैं। अगर खानदान में किसी का कत्ल हो गया तो फिर यह कि बेटे की तरबियत होगी, बेटा बदला लेगा, और मतलब वो इंतकाम दर इंतकाम दर इंतकाम। इस तरह हमारे यहाँ कबीलों की लड़ाइयाँ भी, खानदानों की लड़ाइयाँ भी सुनी जाती है कि इस तरह करते हैं बास कबीले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मुसलमानों से अर्ज कर रहा हूँ कि आप मुसलमान हैं तो आंखें खोलें, और बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जाता, और बेटे का बदला बाप से नहीं लिया जाता, भाई का बदला भाई से नहीं लिया जाता। जैसे कि ये कि हमारे यहाँ इस तरह भी होता है कि एक भाई मुजरिम है और वो हाथ में नहीं आया तो उसके भाई को बंद कर दिया, और उसको जो भी तकलीफें दी सर उसके बेचारे कसूर नहीं है, वो इस वजह से कि वो भाई भाग कर आ जाए वापस, वो थोड़ी आएगा। इस तरह का आते हैं। तो ये तरीके दुरुस्त नहीं है। मैंने इस्लाम की बात की है, शरीयत की बात की है। अल्लाह सबको तौफीक दे कि ये फिर जुल्म होता है, इस तरह जो किया जाता है जुल्म होता है। अभी मतलब समझ नहीं पड़ती, लेकिन बाद में पता चलेगा। आखिर मौत से तो कोई बचकर जाने से रहा, जब ये मौत आएगी तब पता चलेगा ये क्या कर दिया हमने। और जुल्म क़यामत का अंधेरा है, और जालिम की क़यामत में हार और मजलूम की जीत है। मजलूम का गरेबान होगा, मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरेबान। फिर वो अपना हक वसूल करेगा, मुतालबा करेगा अपने हक का अपने रब से। और अल्लाह पाक के यहाँ सिर्फ इंसाफ है, जुल्म नहीं है। तो अल्लाह के कहर व गज़ब से हम सबको डरना चाहिए, और किसी पर भी चींटी पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए। सबके साथ इंसाफ, इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकतबतुल मदीना का रिसाला फैसला करने के मदनी फूल, आप इस रिसाले में पढ़ सकेंगे। आदिल काजी जान दे दी, मनसब कज़ा कबूल ना किया, आदाब फैसला, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ना मानने का अंजाम, जिम्मेदारी मांग कर लेने का नुकसान। ये रिसाला मकतबतुल मदीना से शाया हुआ है। इसके 56 सफ़हात हैं और 15 रुपए कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। 15 रुपए सिर्फ? 15 रुपए जी, माशाअल्लाह, 15 रुपीज। ये तो बहुत काम का रिसाला है, ये तो बांटना चाहिए, और खासकर मतलब उन इदारों को देना चाहिए, समाजी इदारों को। ये आए दिन फैसले करवा रहे होते हैं। अब जो जिस तरह भी करवाते हो, ये इस पर कोई बहस नहीं है, करवाते हैं ये फैसले। तो इनके पास ये रिसाले जाने चाहिए, इनको बांटें, आप पहुंचाएं, फॉलो अप करें। अगर ताल्लुकात भी तो होते हैं ना अपने कबीले, अपनी बिरादरियों में, तो पूछे कि पढ़ लिया कि नहीं। हर रुकन के हाथ में ये होना चाहिए आपके, तो इंशाअल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। बल्कि ये रिसाला जो है ये निगरानी शुरा का बयान हुआ था वकला में, वकील जो आते हैं हमारे मुख्तलिफ शोबे वाले वकला में जी, अच्छा, जो इंसाफ जी जी दिलाते हैं लोगों को, उनमें ये बयान किया था। दिलाते हैं, कोई नहीं दिलाते या क्या करते हैं। बहरहाल वकला ये आम तबका है, तो इसमें बयान है, तो ये कैसा होगा? बड़ी जबरदस्त मालूमात माशाअल्लाह करीम। तो इसको जरूर पढ़िए। पेज कितने बताए? 56 56 सफ़हात 56 जी। वाह, 56 का अदद कुछ याद दिलाता है, बूझो तो जाने। कोई नहीं पूछा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बवक्त शहादत उम्र शरीफ 56 साल थी। क्या बात, क्या बात। चलो इस बहाने करबला की हाजिरी हो गई ना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नवास रसूल शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फैसला करने के मदनी फूल, इसका आप टाइटल भी देख रहे हैं, तो इसको ज़रूर हासिल करें और इसको तकसीम भी करें, ज़रूर इसका मुताला करें। और दावत इस्लामी की वेबसाइट
www.dawatislami.net, इससे आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। भाई इतना सस्ता क्यों यार, 15 रुपए दिया, भूल में तो नहीं आपने ऐलान कर दिया? ये मालूमात की है, यही इसके प्राइस है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी ले लो भाई, वरना इनकी समझ पड़ जाएगी, तो हाँ जल्दी जल्दी ले लो इसको। असल में इसमें होता यही कि पुरानी प्रिंटिंग की जो मैं समझता हूँ, मैं इनको गर्म कर रहा हूँ। मतलब ये एक जज्बा है कि किसी तरह दीन जो है ना हमारे अंदर उतरे यार। अरे मेरी आमदनी इसमें क्या है, सब समझ सकते हैं। तो जज्बा के बस ये खरीद लेना है और बांटना है। नहीं वाकई 15 रुपए का तो पान भी नहीं मिलता होगा, चाय भी 80 रुपए की हो गई है, परसों तरसों किसी ने बताया था ना। मिनरल वाटर भी मेरा ख्याल है 100-150 रुपए की बोतल होगी, पानी भी नहीं मिलता 15 रुपए में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी के घर में झांकना मना है। ये आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, घर वगैरह ये इस तरह ही बनाए जाते हैं पूरे गिलास के टोटली, शायद इसीलिए बनाए जाते हैं कि अंदर बाहर सब दिख सके। तो इस पर देखने का क्या हुक्म है? सवाल थोड़ा स्पीड से था। बिल्डिंग वगैरह जो बनी हुई होती हैं आजकल, ये कह रहे हैं कि किसी के घर में झांकना मना है, इस तरह ये हमने सुना है। तो बिल्डिंग्स वगैरह आजकल बनाई जाती है, मॉल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो उसमें शीशे की दीवारें बनी हुई होती हैं, तो उसमें तो आर पार सब नजर आ रहा होता है। तो वो बनाई इसलिए होता है कि उसको अंदर से बंदा बाहर का मंजर देख सके। तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? जिसने पर्दा हटा दिया उसने अपनी हुर्मत खुद ही खोई। तो अब ये कि जैसे ये गिलास लगाए जाते हैं, इसका मतलब ये कि कोई देखे तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। होटल में देखना और चीज है और किसी के घर के अंदर झांकना और चीज है। होटल में तो ग्राहक बैठे होते हैं और तशहीर होती है, होटल की खूबसूरती देखे अंदर से तो कोई आइटम नजर आए, समझे, तो मुंह में पानी आए और दरवाजा खुले और ग्राहक अंदर दाखिल हो जाए। किसी के घर में दाखिल होना, ये बगैर इजाजत दाखिल भी नहीं हो सकते और झांक भी नहीं सकते। अब घर में पर्दा नहीं है, दरवाजे खुले हुए और किसी की नजर पड़ गई अचानक, वो ज़रा मुजरिम नहीं है, लेकिन इरादतन उसमें झांके नहीं, देखने से बचे। हुजूर इसका भी जब जो नेक अमाल में जो आपने इस तरह का एक अमल लिखा है कि किसी अपने महल्ले में या सीढ़ियों से उतरते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ इस्लामी भाइयों के इसी अंदाज देखा है कि उन्होंने उतरते हुए वो बाकायदा अपनी उन जालियों पे पर्दा लगा दिया है ताकि वो सामने वाले घर में नज़र ना पड़े। बिल्कुल। और मुझे वो आपका एक वाकया भी याद आ रहा है कि जब आपकी तबीयत नासाज थी तो सामने गली में जो हाजी रज़ा भाई का घर था, तो वहाँ आपने एक हिमा, मुझे याद आ रहा है कि हिमा एक लाइन खींची हुई थी आपने उस कमरे में। तो अमीर अल-सुन्नत उस कमरे में आराम फरमा थे, तो इस्लामी भाई ने किसी ने पूछा था कि खिड़की से आगे एक लाइन खींची हुई थी, तो आपसे पूछा गया कि ये लाइन किस चीज़ की है, तो आपने फरमाया ये मैंने हिमा लाइन, यानी वो बॉर्डर लाइन कुछ इस तरह से फरमाया था। तो इसकी वजह पूछी कि क्यों, तो कहा कि मैंने देखा कि खिड़की तक जब मैं जाता हूँ तो सामने के घर में नज़र पड़ती है, तो मैंने भी बाउंड्री अपनी लाइन खींची कि बस इस लाइन तक मुझे आना है ताकि सामने वाले घर पे नजर ना पड़े। तो ये माशाल्लाह देखकर याद आ जाए ना। जी जी जी। तो घरों वाकई ऊंचे मकान में ये आजमाइश तो है कि सामने घर होते हैं ना, नीचे तो वो निजाम ऐसा आमतौर पर होता नहीं है घर में, तो यूं नजर अपनी पड़े तो बच्चे आदमी, आजमाइश है ना। सवाल है कि अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो जो हमारे हॉस्टल में जो हमारे रूममेट होते हैं, अगर उनमें से कोई इस्लामी भाई किबला की तरफ टांगे करके, कदम करके, पाँव करके आराम फरमा रहा है, तो इस मसले में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उसको उठाते हैं तो उसकी नींद खराब होगी, अगर नहीं उठाते तो इसमें बेअदबी का अंदेशा है, तो क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत? हमारी इस पर रहनुमाई फरमा दे। मुफ्ती साहब आ जाए तो पूछते।
کہ बाज़ों की नींदें ऐसी होती कि एक बार आंख खुल गई तो फिर बेचारे को नींद आती नहीं है। तो आया ये ऐसा फेल है कि जिससे किसी की नींद खराब होती हो तो हो जाए? तो ये आएंगे तो मुफ्ती साहब इंशाल्लाह मालूम कर लेंगे। रमजान रमजान रमजान, छोटे छोटे प्यारे बच्चों का रमजान, रोशन जैसे तारे बच्चों का रमजान, रमजान रमजान रमजान। तैयमान पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाना आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नियत से इतिकाफ किया उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मेरा नाम मोहतरमा फातिमा है और मैंने आज पहला रोजा रखा। मेरी उम्र 6 साल की है। मेरा फर्स्ट रोजा है। मेरे घर वालों के लिए मेरे लिए मदीने की दुआ करें। रब्बे मुत्तबा तुम मुझे अच्छे पे भूला भूला भूला। अल्लाह इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। हमको किसने पैदा करा? अल्लाह पाक ने। हमको रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह पाक। ये अपनी और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करती है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रोज़ों में ओ दरी क्या जब दरी होगी नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। माशाअल्लाह क्या बात है। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह करीम सारे बच्चों बच्चियों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप और ख़ानदान समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मिठा मिठा चैत से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जरा दिखाइए इनको स्क्रीन पर ये क्या कर दिया इन लोगों ने। माशाअल्लाह सुलह करवाने के रिसाले इनके हाथों में भी आ गए। अभी ऐलान हुआ आलम मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना के मोतकिफ़ीन और आशिकान रमज़ान। वाह क्या बात है रमज़ान की। ये छत से आए क्या हुआ? मतलब कैसे या उड़ के कोई ले आए? क्योंकि वो लोगों से कंधे फलांगने वगैरह का तो मना किया हुआ था ना। एक गए तो वो आए नहीं, तो वो आए तो किस तरह आए? ये उड़ के आए या छत से अपनी जगह पे गिरे या क्या हुआ? अच्छा वो आ रहे थे यूं हटा हटा के या खुश भागती है। तो ये तो रॉन्ग नंबर लगा दिया है। साइडों से आए। हाँ मगर कम लोगों को हटाना पड़ा होगा। ऐसी साइड बनी हुई नहीं है सर। हाँ कोई सी बारादरी बिछी हो ना बीच में तो चल कर कि उधर बैठना मना हो, लेकिन ये लोग उस पर भी बैठ जाएंगे अगर कुछ बिछा भी देंगे तो आने जाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर जो बीच उधर से उठेगा तो यूं आएगा दरी की तरफ तो भी देर तो लग जाएगी उसको। कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम तो होगा। माशाअल्लाह चलो ले आए माशाअल्लाह या नजर आए माशाअल्लाह। अगर किसी को तकलीफ पहुंचा कर आए हैं तो माशाअल्लाह वापस ले लेता हूँ। यानी जो दाद दी वो तहसीन की, किसी को तकलीफ भी नहीं देनी है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुल्तान बरकातुहुल आलिया के ऑफिशियल फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, इस पर भी मदनी मुज़ाकरा बहरास देखा जा रहा है। अमान अंसारी ये सवाल कर रहे हैं फेसबुक पेज पर। ये कह रहे हैं 20-25 साल की कज़ा नमाजें हों और मामला ये हो कि कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता, तो कज़ा नमाजें किस तरह पूरी करे अगर किसी शख्स पे इस तरह से हो? हिसाब में तो ये कि अपना ख्याल जमाए, जन्ने गालिब जिसको बोलते हैं, तो जन्ने गालिब करे, ख्याल जमाए कि
कितनी नमाजें मेरी कज़ा हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़हन बनाए, एक भी फ़र्ज रह जाए ऐसी मतलब वो बुखल ना करे। इस तरह मतलब ये कि वो सारों का हिसाब लगा कर फिर इनको कदा करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कज़ा उम्री का तरीका और इसकी कुछ मसाइल वगैरह, इस्लामी अहकाम, ये अपने नमाज के अहकाम मकतबतुल मदीना की किताब है, उसमें मौजूद है। कज़ा नमाज का तरीका उस रिसाले का नाम है। हो सकता है अलग से भी रिसाला मिलता हो, तो वो भी इतना महंगा नहीं होगा, पुराना है ना, तो शायद नया छापा होगा तो फिर उन्हें हिसाब से इसका प्राइस अलग से भी है ये रिसाला। हाँ, अलग से रिसाला है ना, आ जाएगा इंशाल्लाह प्राइस इसका, आ जाएगा या आ जाएगी। प्राइस मुज़क्कर मुअन्नस आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। कीमत हम तो पहले हदिया बोलते थे, लेकिन अब हदिया में शायद लोग ना समझे। कज़ा नमाज़ों का तरीका, ये मकतबतुल मदीना का जो सेपरेट रिसाला है, इसके 25 सफ़हात हैं और 25 रुपए कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। माशाअल्लाह, सिर्फ 1 रुपए का एक सफ़ा, क्या बात है। वाकई महंगा नहीं है, ये दोबारा छपा होगा ना तो ये नई कॉस्ट इसकी निकाली होगी। तो बहरहाल ले लेना चाहिए और इसको तो सबको पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल है कि अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो जो हमारे हॉस्टल में जो हमारे रूममेट होते हैं, अगर उनमें से कोई इस्लामी भाई किबला की तरफ टांगे करके, कदम करके, पाँव करके आराम फरमा रहा है, तो इस मसले में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम उसको उठाते हैं तो उसकी नींद खराब होगी, अगर नहीं उठाते तो इसमें बेअदबी का अंदेशा है, तो क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत? हमारी इस पर रहनुमाई फरमा दे। मुझसे जवाब बन नहीं पड़ा तो आपके लिए रुका था। ये अदब के खिलाफ लिखा है, क्योंकि पाँव करके लेटा हो तो उसको मना लिखा गया है कि मना है, नाजायज़ व हराम नहीं करार दिया गया। और अगर नाजायज़ हो भी तो ज़ाहिर है कि हर सूरत में हम किसी पर लाजिम नहीं कर सकते कि वो उसको उठाए ही उठाए। अब ये एज़ पर कंडीशन और नींद के एतबार से होता है, और सामने वाली की तबीयत के को देख कर ही ये मामला होगा। अगर कोई ऐसा है कि जिसकी नींद के बारे में से मालूम है और पता है कि झगड़ेगा भी नहीं और इसकी नींद में यूं खलल नहीं पड़ेगा, कि बहुत से ऐसे होते हैं कि उठ के फिर आराम से दोबारा भी सो जाते हैं, पाँव उनकी डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है तो ऐसे में ठीक है वो उसको उठा दे। बाकी अब वो उसकी नींद घेरी और झगड़े के अंदेशे, तो इसमें हमें से ये कहेंगे नहीं कि ये उसे उठाए। जी, मैं इतना तो मैंने भी अर्ज किया था, यानी कि नींद बाजों की ऐसी होती है कि एक बार आंख खुल गई ना फिर बेचारों को नींद नहीं आती। तो ये देखना है कि इसकी इजाजत मिलती है कि नहीं, इसीलिए आपको अदब करना चाहिए। लोग मतलब सो जाते हैं जिस तरह भी मौका मिलता है, पाँव करके, अनजानी जगह होती है तो समझ नहीं आती किबले की, तो मालूम कर लेना चाहिए। अब तो अपने जिनके पास ये मोबाइल व्हाट्सएप में और ये भी ऑप्शन मौजूद होता है किबला मालूम करने का, तो किबला मालूम कर लिया जाए। बल्कि बैठने के लिए भी किबला मालूम कर लिया जाए। एयरपोर्ट वगैरह में जाता हूँ मैं, तो पेशाब वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो कोशिश यही होती है कि मैं ये अपने साथ रखता हूँ और फिर वहाँ अंदर जाकर मौके की मुनासबत से चेक करता हूँ किबले की डायरेक्शन, क्योंकि किबले की तरफ मुंह करके या पीठ करके पेशाब करना ये हराम है, सोने की तरह नहीं है। ये इसका मसला ज़्यादा सख्त है। आजकल तो मतलब ये डायरेक्शन का पता ही नहीं होता लोगों को। इमारतें भी बात बनती है तो उसमें ये होता है कि जिस तरह उनको लोकेशन बनता है आसान खूबसूरत, तो वो इस तरह बना देते हैं। किबले की तरफ मुंह कम होता है, पीठ कर देते हैं, ये थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, मगर वो उनकी लोकेशन के मुताबिक कि देखने में मतलब कोई इसको इनके नज़दीक बदनुमा ना लगे। तो ये गलत तरीका है। बिल्कुल डायरेक्शन देखी जाए कि किस तरह है
और ये बनाना पड़ेगा इसको। हमारे यहाँ भी बनाने वाला जो था, एक बार वो हमारे अपने पीर कॉलोनी में मकान, जो दावत इस्लामी का नया नया मरकज हमने लिया, तामीरात जारी थी, तो बस वो मेरे को यूँ आया कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो इसको आबाद करें, तो इसलिए यहाँ घर लिया। तो अधूरा था वो, तो वो फिर उसको पूरा करने के लिए वो था भी मतलब मजहबी इस्लामी भाई, हाँ इस्लामी भाई भी कह सकते हैं, तो जो जिनको ठेका दिया था, तो उन्होंने मतलब ये कि हाँ मैं तो सब इसको भाई यूँ करना है, तो इस समझ गए वो, जैसे मैं समझ गई है। ये जितने भी WC थे वो सब गलत बन गए रुख में। बाप रे बाप, क्या करें। तो सबको मैंने वो तोड़वा कर, खर्चा हुआ, लेकिन मैंने कहा यार ये अपने को जमेगा नहीं, गलत बन गए, उसका रुख चेंज करवाया था। तो इसमें ये कि जैसे कि थोड़ा तिरछा नहीं चलेगा, रुख जो है किबले की तरफ, इसको बोलते हैं इस्तिकबाल किबला, यानी मुंह किबले की तरफ। एक होता है इस्तिदबार किबला, यानी किबले की तरफ पीठ, ठीक है ना। तो ना इस्तिकबाल किबला जायज़, ना इस्तिदबार किबला जायज़। तो अब इसमें थोड़ा सा तिरछा हो गया कि भाई किबला रुख नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। 45 डिग्री के बाहर निकलेगा तो मतलब बाहर, दोनों तरफ से, ये ख्याल रखना है। तो इसलिए वो आसान जो है ना, इसका मैं जो अर्ज करता हूँ कि ये सलाम फेरा ना, नमाज तो किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, सलाम फेरा, तो बस ये यूं सलाम फेरते ना, बस यूं होना चाहिए, ये यूं रख लिया जाए। तो ये अगरचे 90 डिग्री बन जाता है, 45 से तो बहुत दूर हो गया ना, 45 के बाद हो तो चल जाएगा, 90 डिग्री में खतरा कम हो जाएगा ना, 45 से थोड़ा सा बाहर हुआ ना, तो फिर ये यूं उल्टा सीधा, मतलब थोड़ा बहुत खसकने सरकने से भी वापस 45 में दाखिल हो जाएगा, तो वही गुनाह की सूरत बन जाएगी। तो इसलिए जितने भी मकानात हैं इसको चेक कर लें। जब भी आप किसी नए मकान की तरकीब करें, किराए का मकान लें, तो ये देख लिया करें कि इसके रुख की पोजीशन क्या है। होटल में भी कमरा लेते हैं, मसाइल होते हैं, अब है मतलब ले लिया, मजबूरी है, तो फिर तिरछा बैठने की तरकीब करें, इस तरह के 45 डिग्री से बाहर हो जाए। किसी के यहाँ जाते हैं घरों में, वहां भी वाकई ऐसे मसाइल होते हैं। अब मेरे साथ माजूर आदमी तो फंस जाता है, सच्ची बात है। माजूर अगरचे वो सा माजूर नहीं हूँ, लेकिन वो टांगों के मसाइल, और ये थोड़ी पहले की तरह यूं कर लिया यूं कर लिया, तो अब मुश्किल आते हैं। अल्लाह पाक बस आसानियां कर दे। तो इसलिए वो मेहरबानी करके अपने किबले रुख चेक भी कर लें कि 45 से बाहर है, नहीं तिरछा भले हो लेकिन 45 से बाहर दोनों तरफ से होना, तो इंशाअल्लाह बचत हो जाएगी। ये पहले भी मैंने कई बार या चंद बार समझाया है, लेकिन टाइम हो गया इसको, तो आज सवाल हुआ तो इस पर तरकीब बनी। तो बहरहाल ये कि किबले की तरफ पाँव करके सोना, ये तो अदब के खिलाफ है, और ये मुंह या पीठ करना ये हराम है, ठीक है ना। तो किबले की तरफ पाँव रखकर भी ना सोए। बाद अवाम इसमें बड़ी सख्ती करते हैं कि नहीं सोना चाहिए, तो बाज कोई एहसास ही नहीं होता। तो बहरहाल बादब बानसीब, बल्कि वो एक है मतलब नुक्ता है या मतलब मुहावरा है, ला दीन अल्ला अदब अल्लाह, उसका कोई दीन नहीं, इसमें अदब नहीं। इससे मुराद यही अदब हो, ये जरूरी नहीं है। अदब यानी दीन में अदब, ये हुस्न है कि हमारा मजहब जो है ना मुहज़्ज़ब है, मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात। बस मैंने एक बार एक शख्स को देखा जो मतलब मेरी याददाश्त में नक्श हो गया है, कभी कभी बताता भी हूँ मैं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में वो बदनसीब सरकार के रोज़े पाक की तरफ पाँव रख के लेटा हुआ था भी एक मखसूस, उसका चेहरे से कुछ इज़हार हो रहा था, मखसूस अंदाज, दाढ़ी उसकी पूरी थी, लेकिन रहा नहीं गया हमसे। तो उसको मोहब्बत से कहा कि आपके पाँव यूं कर ले, ये सरकार का रोज़ा है, और लिफ्ट ही नहीं कराया हमको, नहीं माना। ऐसा दिल खराब हुआ है कि मत पूछो बात। तो खैर सुन्नी ऐसा बेअदब हो नहीं सकता, अल्लाह बेहतर जाने कौन था वो। बहरहाल ये कि
वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। उसने बिल्कुल हमारी कच्ची कर दी, नहीं कच्ची क्या उसकी हो गई कच्ची, पता नहीं इसका पाँव सड़ गया या क्या हुआ, अभी पता नहीं चला है कुछ, मैं जानता नहीं था, मैंने फिर बाद में कभी उसको देखा है। ऐसे वो देखना भी नहीं चाहिए, देखें उसको जिसको देखकर भी कोई ईमान ताजा हो, ऐसे बेअदब को देखकर क्या कर रहा है। अल्लाह पाक इस हिदायत नसीब करे। इमाम आज़म अलैहिर्रहमा हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने कभी भी अपने उस्ताद हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर की तरफ पाँव नहीं किया। लगे 6 गलियां छोड़ के घर था, हालांकि घर फासले पर था। 7 गलियां छोड़ के अपने उस्ताद का घर था शेख हम्माद का, तो उसकी तरफ पाँव नहीं करते थे। मेरे पीरो मुर्शिद मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बचपन से जब से मुझे गोश्त पाक, जब से बगदाद शरीफ की समत पता चल गई है गोश्त पाक के रोजे की, मैंने कभी भी कसदन उस तरफ पाँव नहीं फैलाए। तो ये अदब वाले लोग हैं, हम इनके पीछे हैं और इंशाल्लाह इनके पीछे पीछे ये होंगे आका के पीछे पीछे, और बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे और बेअदब आके फाड़ फाड़ के देखते रह जाएंगे। ये क्या हुआ? जो हुआ सो हुआ, होगा वही जो मैंने कहा है इंशाल्लाह। अदब की बोलबाला है, बेअदबी का मुंह काला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी? जनाज़े नमाज बोल रही है, नमाज, हाँ नमाज तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। हजरत इमाम अजल राफिई रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुस्नद में जिक्र फरमाया कि सुबह की नमाज, सुबह की नमाज, फजर की नमाज सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, जोहर सैयदना दाऊद, असर सैयदना सुलेमान, मगरिब सैयदना याकूब और इशा हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। हवाला फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 5 मुल्तक़ितन व मफ़हूमन, ये किताब ढूंढते रहो। मुख्तसर ये कि ये आला हज़रत के अल्फाज को तब्दील करके उसका मजमून इसमें बयान कर दिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मछलियों के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। ये बेचारी मछलियाँ सर्दी में भी पानी में रहती हैं। खाने की सारी चीजें तो पानी से बाहर होती हैं। ये पानी में क्या खाती होंगी? हमजा बेटा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो मछली के पेट में 40 दिन जिंदा रहे। मछली के पेट में? हाँ, ये कैसे हो गया? प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आप क्या फरमाते हैं हमजा के इन सवालात के बारे में? सुभान अल्लाह। मछली दरिया में जो होती है तो ये खाती है, अल्लाह पाक ने इनकी गिज़ा पानी में रखी है। जैसे काई होती है, कुछ ना कुछ मतलब अंदर भी पानी में ऐसी चीज़ें, ऐसे मुख्तलिफ जिंदगियां पाई जाती हैं, तो ये इनको भी खा लेती हैं मछलियाँ। अच्छा, फिर इनको ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी मछली छोटी मछली को भी खा लेती है, निगल जाती है। तो यूँ मतलब ये कि मछलियों को तो ज़रा अल्लाह ने पैदा किया है तो वो ग़िज़ा भी अता फरमाता है। और हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में रहे और मछली 40 दिन तक दरिया में इधर उधर फिरती रही। इस दौरान आपने जिन्नात और मछलियों की तस्बीहात, यानी उनके जिक्र अज़कार और ऐसे दरियाई जानवरों की तस्बीह भी सुनी, यानी उनका जिक्र भी सुना
जिनको आप देख नहीं पाते थे। हवाला तारीख इब्न असाकिर जिल्द 74 पेज नंबर 285। जब 40 दिन पूरे हो गए तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर गम तारी हो गया और रोते हुए अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, तेरे सिवा कोई माबूद यानी इबादत के लायक नहीं, तू हर ऐब से पाक है। ऐब माने फॉल्ट, खामी। बेशक मुझसे बेजा हुआ। हजरत यूनुस अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूलियत के मकाम पर फाइज हुई, कबूल हुई और आखिरकार इनकी ये आजमाइश खत्म हुई। हवाला अत्तवाबीन इब्न कुदामा मुक़द्दिसी सफ़ा 28। तो यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या तो है मशहूर। 40 दिन तक आप मछली के पेट में रहे और ये भी रिवायत मिलती है कि वो मछली जिसके पेट में आप 40 दिन तक रहे ये जन्नत में जाएगी। और ये अल्लाह की कुदरत है कि 40 दिन तक हज़रत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मछली के पेट में रहे। इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है कि मछली के पेट में कोई जिंदा रह सके, लेकिन ये अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तो ये इनका मौजिज़ा है हज़रत यूनुस अलैहि सलाम का। देखो ना, अल्लाह पाक 9 महीने भी बच्चे को अंधेरे पेट में रखता ही है ना, तो ग़िज़ा भी मिलती है उसको, सब कुछ मिलता है। तो ये भी काबिल गौर है ना। तो अल्लाह की कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, जो चाहे वो करता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वो पूछ रहे थे कि सर्दियों में पानी में कैसे रहती हैं? तो हमजा सर्दियों में कैसे रहते हैं? सर्दियों में हमजा भी रहते हैं ना। तो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती ना, सर्दी हो या गर्मी। मछली को पानी के बाहर निकालो तो ये मर जाती है। लगती होगी तो अब ये तो मुहक्किकीन बता सकते हैं, पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन पानी के बाहर वो जिंदा नहीं रहती। तो इसलिए वो अल्लाह पाक इनको सर्दी से भी बचाता, गर्मी से भी बचाएगा। और उसके असल बदन पर खोल इस तरह के होते हैं और खाल भी होती है, किसी के खोल नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये कि अब कोई माहिर मछलियान का पैगाम आए कि भाई मछली को सर्दी क्यों नहीं लगती, या हम हमजा को बता दें, आप बता दें हमको। खून इसमें नहीं होता, लेकिन खून नहीं होता इसलिए सर्दी नहीं लगती। कोल्ड ब्लडेड, ये जो अच्छा ये खून ऐसा है कि इसको ये होने की वजह से इनको सर्दी नहीं लगती, यानी ये तिब्बी तहकीक है, साइंसी तहकीक है। चलो भाई बैठे बैठे ये तहकीक एक तो सामने आ गई। तो फिर गर्मी भी नहीं लगती होगी, होती ही पानी में। हाँ तफसीलात तो होंगी। मेरा नाम इमरान अत्तारी है। मेरा ताल्लुक बांग्लादेश के शहर चिटागोंग से है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है, अगर किसी शख्स ने तरावी की नमाज में 2 रकात की नियत की, लेकिन 2 रकात पढ़ने के बाद कादा करना भूल गया और तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, फिर तीसरी के बाद चौथी रकात भी मुकम्मल कर ली, तो क्या इस सूरत में सजदा सहू लाजिम होगा? नीज सजदा सहू लाजिम होने या ना होने की इल्लत भी बयान फरमा दीजिए। जी 2 रकातें इसकी होंगी ये, क्योंकि कादा नहीं किया और चूँकि ताखिर हुई है उसमें, तो इस एतबार से ये
सजदा साहब भी करेंगे। अच्छा, कादा उला नहीं किया जी सुन्नतों में? नहीं, जिस 4 रकात, इन 2 रकात की नियत की थी तरावी में। अच्छा, तरावी में जी। अच्छा, हर 2 रकात तो फर्ज नहीं है कादा इसमें, फर्ज। अच्छा अच्छा, तो सजदे साव करने से गुजारा हो जाएगा। तो तरावी में अगर कादा पे 2-4 रकात की नियत से पढ़ी तो पहले कादे में नहीं बैठे तो सजदे साव करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी, ये मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। अब हर्षित में होगा ये, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैरी करता हूँ उकाड़ा में या बिलफर्ज लाहौर में मैं सैरी करता हूँ। अफ्तारी के वक्त मैं बिलफर्ज कराची पहुंच जाता हूँ, मेरा कराची उधर जो टाइम होगा अफ्तारी का, मैं अफ्तारी कराची के टाइम पे करूंगा या लाहौर के ही टाइम पे करूंगा? आपकी फ्लाइट या आपकी ट्रेन, फ्लाइट में ही आएंगे तो फ्लाइट जहाँ से गुजरी वहाँ सूरज डूबने का यकीन हो गया तो अब यहाँ इफ्तारी आप कर लें। अब सूरज मजीद आगे बढ़े, ये फ्लाइट आगे होगी तो हो सकता है सूरज कहीं निकल भी आएगा, लेकिन ये कि आपने तो अपने वक्त में इफ्तार कर लिया कि जहाँ सूरज डूब चुका है यकीनी तौर पर, और मगरिब की नमाज का आपका वक्त वहाँ हो गया, इस दौरान नमाज भी पढ़ ली अगर वक्त के अंदर, तो अब दूसरी जगह पहुंचे और सूरज निकल आया है तब भी मगरिब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो तो हम नमाज तो आपने वक्त के अंदर पढ़ी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद मुबशर है और मेरा अमीर अल सुन्नत से ये सवाल है कि जो मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का रोज़ा है क्या उसका सवाब बहुत ज़्यादा है? मक्का पाक में तो एक नेकी की लाख नेकी है। अच्छा, शहर मदीना में एक नेकी की, अब नमाज की तो हदीसें हैं वैसे कि मस्जिद नबवी में नमाज, एक नमाज की 50,000 नमाजें, तो रफीकुल हरमैन में क्या लिखा हुआ है? मुझे याद पड़ता है ये मदनी मुज़ाकरे में ही ये पहले हुआ था और इसमें शायद हमारी, मुझे ये याद पड़ रहा है, गलत गुमान है, जो तहकीक हुई थी, कुछ मुताला वगैरह हुआ था तो मस्जिद नबी शरीफ के अलावा जो शहर था उसको भी लिया था, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि वो मस्जिद नबी शरीफ जो तोसी होती चली जा रही है तो उसको भी, शहर को भी नेकियों में लिया गया था। तोसी होगी, अब तो इस वक्त जो मस्जिद नबी शरीफ है उसको पूरा कदीम मदीना उसके अंदर आ गया। जी हाँ, तो मुझे याद पड़ता है जो मस्जिद हमारा बन गई तो अब तो वो नेकी उसकी समझ में आता है। अब जो दूसरा इजाफी शहर मदीना, या पहले जब मस्जिद नबी एक हिस्सा थी शहर मदीना का, तो उस वक्त क्या, तो इसी कोई रिवायत अगर कोई मिल गया मसला इसका इंशाअल्लाह। पहली रकात में अगर सूरत पढ़ ली जाए कोई बड़ी तो छोटी सूरत पढ़ सकते हैं इन्ना पैना दूसरी रकात में? पहली में बड़ी, दूसरी, पहली में छोटी, दूसरी में बड़ी। दोबारा चला दें, समझ नहीं पड़ी इनका इब्तिदाई हिस्सा। दोबारा चला दिए। पहली रकात में अगर सूरत पढ़ ली जाए कोई बड़ी तो छोटी सूरत पढ़ सकते हैं इन्ना पैना दूसरी रकात में? कुछ कट हो गया इसमें, लेकिन ये कि मफहूम यही समझ में आ रहा है। पहली रकत में अगर बड़ी सूरत पढ़ ली और दूसरी रकत में छोटी सूरत अगर पढ़ लें, इस तरह करके कुछ कह रहे हैं। एक तो एक उल्टा नहीं पढ़ना है, नीचे की तरफ, यानी कि उतरता है ना, जैसे कि पहले सूरह नास पढ़ ली, सूरह फलक पढ़ ली जैसे, तो फिर कुलोवल्ला शरीफ पढ़ी, तो सूरह फलक के बाद कुलोवल्ला नहीं पढ़ सकते, सूरह नास पढ़ेंगे। अच्छा, तो 3 आयतों का जो है ना वो इस सूरत में है, जबकि पहली रकात में छोटी पढ़ी हो, दूसरी में बड़ी पढ़ी हो। अच्छा अच्छा, यहाँ पहली रकात में बड़ी सूरत पढ़ लें, दूसरी में छोटी पढ़ लें, तो इसमें हर्ज नहीं है। होना ये चाहिए बराबर पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ी है तो उसमें हर्ज नहीं है। बुकरा तंजी बेहतर यही लिखा है जी, छोटी। अच्छा, वो उस सूरत में है जबकि पहली रकात में छोटी पढ़ी हो, दूसरी में बड़ी पढ़ी हो, तो ये मकरूह तंज़ीह है। लेकिन उसमें ये कि वो बड़ी से मुराद ये कि 3 से ज़्यादा उसके अंदर आयतें हों।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक लाइव मौलाना इलियास कादरी पेज पर ये सवाल कर रहे हैं, अगर कोई इस नियत से एतकाफ करे कि पूरा साल तो गुनाह करना ही है, चलो एक महीना सवाब कमा लेते हैं, इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? वो माफ कीजिएगा, मदीने तैयबा में नेकी का जो चला था तो वो मलफूजात आला हजरत के हवाले से है। मदीने तैयबा में एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर है, लेकिन वहां अगर कोई शख्स गुनाह करे तो उसे एक ही गुनाह मिलेगा, वहां गुनाह में इजाफा नहीं है। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा में जिस तरह एक नेकी लाख नेकियां हैं, यूं ही एक गुनाह लाख गुनाह हैं, और वहां गुनाह के इरादे पर भी गिरफ्त है, यानी मक्के शरीफ में जिस तरह नेकी के इरादे पर सवाब, यानी मक्के शरीफ में गुनाह के इरादे पर भी पकड़ है, जिस तरह नेकी के इरादे पर सवाब, मदीना तैयबा में नेकी के इरादे पर सवाब और गुनाह के इरादे पर कुछ नहीं, और गुनाह करे तो एक ही गुनाह, और नेकी करे तो 50,000 नेकियां। अजब नहीं कि हदीस में खैरुल लहुम का इशारा इस तरफ हो कि इनके हक में मदीना ही बेहतर है। ये खैरुल लहुम एक हदीस का हिस्सा है। मलफूजात आला हज़रत हिस्सा अव्वल सफ़ा 238 मकतबतुल मदीना। अभी उस मसले की वजाहत नहीं हुई है जी, इसमें उस मसले की भी वजाहत नहीं है कि शहर मदीना में भी क्या एक नेकी 50,000 नेकियों के बराबर है ना? मदीना तैयबा में मुतलकन तो है, मुतलकन आला हज़रत के ये मलफूजात के हिसाब से तो मुतलकन है। मदीना तैयबा में नेकी के इरादे पर सवाब और गुनाह के इरादे पर कुछ नहीं, और गुनाह करे तो एक ही गुनाह, और नेकी करे तो 50,000 नेकियां। सही है ना? तो मदीने पाक में एक नेकी पर, पूरे मदीने में एक नेकी पर 50,000 नेकियां। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, तो इनके दौर में मदीना शरीफ की तोसी कितनी हुई थी नहीं हुई थी पता नहीं है। तो जितना बढ़ता जाएगा, होता ये है कि जितना बढ़ता जाता है ना, इतना मतलब ये शहर का हिस्सा बनेगा। मस्जिद नबवी शरीफ के बारे में फरमाया कि सनाए यमन, यानी यमन मुल्क है, उसका सनआ शहर है गालिबन, सनाए यमन का लिखा है। तो अगर इस सनाए यमन तक भी मस्जिद नबवी का तोसी हो गई, यानी एक्सटेंशन होता रहा, बढ़ती गई वहां तक भी पहुंच गई, तो तब भी वो मस्जिद नबवी ही है, जितनी भी बढ़ जाए। तो पहले मस्जिद नबवी शरीफ जो थी उसकी जाहिरी साइज और अब जो मस्जिद नबवी शरीफ है उसकी जाहिरी साइज में बहुत फर्क है, काफी तोसी हो गई, आदमी गुम हो जाए इसमें। हाँ, गुम हो जाए तो मिले भी मुश्किल, आजमाइश हो जाए, इतनी बड़ी हो गई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फेसबुक पेज पर यह सवाल मौसूल हुआ है कि अगर कोई इस नियत से इत्काफ करे कि पूरा साल तो गुनाह करना ही है, चलो एक महीना सवाब कमा लेते हैं, इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? पूरा साल गुनाह करते रहें, एक महीने में सवाब कमाते रहें, कमा लेते हैं, ये तो ज़ाहिर खतरनाक है कि गुनाह माफ हो जाएंगे, समझे? रमजान शरीफ में हाँ, गुनाह को हल्का समझना भी कुफ्र है। और मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौबा के इरादे पर गुनाह करना ये भी कुफ्र है। तो अल्लाह की नाफरमानी को हल्का ना जाने के, अभी कर देते हैं फिर तौबा कर लेंगे, बाज़ अल्लाह, ये खतरनाक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या बच्चे को भी सारे रोजे रखने चाहिए या कुछ
छोड़ सकते हैं? आपकी उम्र 8 साल की लिखी हुई है इसमें, तो 7 साल की उम्र हो जाए तो माँ बाप बाप के लिए यह हुक्म कि वो बच्चे को रोजे नमाजें भी पूरी पढ़ाए, 5 नमाजें, रोजे भी पूरे रखवाए। अच्छा, रोजों में ये है कि अगर वो बच्चा इसकी ताकत रखता है तो रखवाए, नहीं रखता, ताकत नहीं रख सकता तो फिर भले उसको ना रखवाए, लेकिन जितने रख सकता है उतने उसको रखवाए। और नमाज तोड़ दी या छोड़ दी या रोजा तोड़ दिया छोड़ दिया तो इसको कज़ा का हुक्म ना देंगे। अच्छा, फिर 10 साल में सख्ती और बढ़ जाएगी नमाज और रोजा रखने की। आजकल माँ बाप को यूं होता है कि कमजोर है कमजोर है, तो ये इस तरह बच्चों को रोजे रखवाते नहीं है। एक रखवाएंगे, अब अल्लाह नियत जानता है एक रखवाने में क्या होती है, तकरीब होती है, वो एक से एक तोहफे आते हैं, मजा आता है मतलब। तो रोजा रखने उसमें नियत की सलाहियत ना हो बच्चे की तो भी रोजा रखवाएंगे, तो पता ही नहीं नियत इसको। बच्चे को बोला रोजा कहाँ रखा है, तो कोई बच्चा, मेरे को तजर्बा है, आपको भी होगा, बच्चे को पूछो रोजा कहाँ रखा है तो बोलेगा पेट में, कोई बोलेगा सर में, कोई बोलेगा फ्रिज में रखा है, कोई आपको बोलेगा घर में रखा है। तो इसको पता ही नहीं रोजे की नियत कैसे होती है। तो इसलिए वो इतने नासमझ बच्चे को जो नियत करने का अहल ही नहीं है, तो उसको रोजा रखा कर बेचारे को क्यों भूखा प्यासा रखते हैं। मीडिया में आएगा और सोशल मीडिया पे धमाल होगी और बड़े खाने पकेंगे, पकवान पकेंगे और मेहमान आएंगे और तोहफे देंगे और नोट देंगे, मुबारकबादियां देंगे। इतने से बच्चे ने रोजा रखा, क्या रोजा रखा कहाँ है यार, फ्रिज में रखा है, नजर उसकी फ्रिज के दरवाजे पर है, कब खुले और रोजा निकले अंदर से, अब मैं खाऊं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा बच्चे को रोजा रखवा लिया, छोटे बच्चे को, और अगर इसको भूख लगी और खाना मांग रहा है तो इसको देना वाजिब है, खाना देना पड़ेगा। आपकी सारी तकरीब एक तरफ हो जाएगी, फिर झूठ बोलना पड़ेगा इसने रोजा रखा है, वो खिला दिया था इसको तो शाम को या दोपहर को, तो रोजा आएगा इसका। और ये कौन बताएगा कि इसका रोजा नहीं था, सारे अपने तहाइफ वापस ले लो, ऐसा कौन करेगा। तो ये है मतलब बच्चा समझदार हो, जिसको पता हो कि रोजा होता क्या है, और रोजा रखने की, इसमें बर्दाश्त करने की ताकत भी हो, तब जाके उसको पहला रोजा रखवाया जाए। और 7 साल वाला, और ये भी अपनी जगह पर जो मैंने अर्ज किया वो भी इसका, इसमें बहुत कहने के कोताही है, नहीं रखवाते रोजा। अब बड़े नहीं रखते तो बच्चे, बेचारे बच्चे बड़े कहाँ रखते। एक भारी तादाद अब सुना है कि हो गई है कि कराची तक में सुना है कि ऐसे इलाके पाए जाते हैं कि जहाँ रमजान का पता नहीं होता, खाते पीते हैं, सिगरेटें फूंकते हैं, माज़अल्लाह। और दीगर शहरों में भी, देहातों में भी बात जगह ऐसे इलाके होते हैं कि होटलें भी खुली और रोज़ा पता ही नहीं कि रोज़ा है। तो हमने इस बार भी काफिलों की ताकीदें की थी, काफिले सफर किए भी होंगे खास इस काम के लिए, रोज़ा रखवाओ तहरीक, कि मुसलमानों को समझाओ कि रोज़ा रखो, फ़र्ज है। तो इसलिए वो आइंदा के लिए भी, आपके लिए भी दरख्वास्त है, आप भी पता हो आपको कि जो रोज़ा नहीं रखता रख सकता है, बीमार नहीं है ऐसा वगैरह, तो आप इनफरादी कोशिश करें, फ़ोन के ज़रिए, सूती पैगाम के ज़रिए, वॉइस मैसेज वगैरह के ज़रिए समझाएं, रोज़ा रखने के फ़ज़ाइल बयान करें, को डराएं गुनाह से। तो समझाने से फ़ायदा तो होता है। ये कुरान करीम में वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ, कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है, समझाते नहीं। आपको भी किसी ने समझाया, समझ में आया, वो तो आज एतिकाफ में बैठ गए ना 1 महीने के, समझाने से फ़ायदा तो होता है ना। कितने बेनमाजी होंगे आप जो बैठे हैं इनमें, जिनको किसी ने समझा कर नमाजी बनाया होगा, ऐसे भी होंगे जो रोज़े भी पूरे नहीं रखते होंगे, जिनको समझा बुझा कर किसी ने यहाँ भेजा होगा और यहाँ मज़े से पूरे रोज़े भी हो रहे हैं, पूरी नमाजें भी मिल रही हैं, जहन भी कई एक का बन गया होगा, अब तो नमाजें जो रह गई उनको भी कज़ा करूँगा, तौबा करेंगे, माशाअल्लाह गुनाहों से तौबा करते हैं। और एक से एक इनके तासुरात जो है मदनी चैनल में नशर भी होते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, वीडियो
तासुरात आज भी चले थे, मुख्तलिफ रोज चल रहे हैं आजकल तासुरात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, रमजान के रोजादार के लिए दरिया की मछलियां इफ्तार तक दुआए मगफिरत करती रहती हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह। मेरे पोते थे हाजी हुसैन जो भी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, मुतकिबिन को खाना खिला रहे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम उस्मान रज़ा है, मैं गुजरात फिजान मदीना से 12 माह के लिए आया हूँ। मेरा ये सवाल है कि नमाज के लिए जीनत की क्या अहमियत है और ये जीनत से मुराद क्या है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआए बख्शिश फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। नमाज के लिए जीनत की क्या अहमियत है और इस जीनत से मुराद क्या है? खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, है ना, कुरान शरीफ की आयत है ये कि नमाज के लिए जीनत लो। तो इसमें जैसे कि कपड़े साफ सुथरे, ज़ाहिर नसीब उम्दा लिबास हो, जो मतलब कम से कम हम मुअज़्ज़ज़ीन के यहाँ जाते हैं, अफसरों के यहाँ जाते हैं, या शादियों में ब्याह में कोई ऐसे ख़ास मौके पर अच्छे लिबास पहन कर जाते हैं, तो लोगों के लिए अच्छा लिबास पहने हम, अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी के लिए बिल्कुल फटे पुराने, तो ये नहीं। उम्दा लिबास नमाज के लिए मुमकिन हो तो अलग से रखा जाए, मुस्तहब कि उम्दा लिबास हो। चाहे खुशबू लगाएं नमाज के लिए, ये भी इसमें शामिल है कि मुस्तहब है ये भी नमाज की ताज़ीम के लिए। मस्जिद में या मस्जिद की ताज़ीम की नीयत से खुशबू लगाएं, तो इस तरह मतलब ये कि अच्छे हुलिये में, अच्छे गेटअप में नमाज पढ़ी जाए। जीनत इमाम आजम का इमामा शरीफ, इमामा भी इसमें शामिल रहेगा, इमामे के साथ नमाज पढ़े। और इसके फ़ज़ाइल भी बहुत ज़्यादा हैं कि एक नमाज इमामे के साथ पढ़ी तो वो बगैर इमामे की 70 नमाजों से ज़्यादा, 70 नमाजों से बेहतर। और जुम्मा के बारे में लिखा है कि एक जुम्मा इमामे के साथ 70 जुम्मों के बराबर। तो यूं इमामा शरीफ इस बार तो माशाअल्लाह काफ़ी इमाम शरीफ से जुमे तो हुए होंगे माशाअल्लाह। इमामे तो पहने इस तरह में यहाँ, लेकिन इजाफी भी पहने होंगे, काफ़ी तरगीब दिलाई गई थी। तो फिर हर वक्त इमामा शरीफ का ताज सर पे हो, यहाँ का की बहुत प्यारी सुन्नत है और एक मुसलमान की जीनत भी है ये। और नमाज में खुसूसियत के साथ इमामा शरीफ का ताज सर पे हो तो क्या बात है। उनका दीवाना इमामा, उनका दीवाना इमामे और जुल्फो रीश में, वाह देखो तो सही लगता है कितना शानदार। तो दाढ़ी मुबारक भी पूरी हो, दाढ़ी मुबारक तो मुबारक उसी वक्त बनेगी ना जब पूरी होगी, छोटी छोटी तो भी मुबारक ना हुई ना। तो दाढ़ी मुबारक भी हो पूरी, एक मुट्ठी अब निकली नहीं है अभी, वो रख ली वो अलग बात है, वो मुबारक है, तौबा करके जो रख ली। अच्छा, और जुल्फें कभी आधे कान तक, कभी पूरे कान तक, कभी इतने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक बड़े के मुबारक कंधों को चूमते थे, शाना बोलते इसको, तो इनको चूमते थे, यानी कि वो इनसे टच नीचे नहीं,
कंधों से नीचे कभी नहीं रखे कि ये औरत के लिए। औरत के लिए कंधों से नीचे बाल रखना है, मर्दों को कंधों से ऊपर रखना है। औरत अगर कंधों से ऊपर काट के करेगी तो उसके लिए हराम, और मर्द अगर कंधों से नीचे बढ़ाएगा तो इसके लिए हराम। ये फतह और रज़विया शरीफ में इस तरह के मसाइल हैं। तो यूं मतलब ये कि मर्द को चाहिए कि वो जुल्फे रखे, ये सुन्नत है, पूरे बाल। अब ये कि कई लोग जुल्फे रखते हैं लेकिन इनको रखना नहीं आता होता। ये यहाँ से देखो, ये जो कलमे कहलाती है, कलमे, ये हड्डी उभार, आप उंगली लगाएंगे ना तो उभरी हुई हड्डी है, इसके ऊपर जो नहीं सर के बाल है तो यहाँ से कटवा लेते हैं, थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं, नोक वाला, समझिए। तो ये फिर जुल्फे नहीं बनेंगी, बाकी जुल्फों जैसा होता है। तो यहाँ से कुछ कटवा लेते हैं, कुछ अंदर से बीच में से बाल लोग शायद हल्का करवा लेते हैं कैंची से, तो ये फिर पूरे बाल नहीं होंगे। तो ये यहाँ से लेना ही नहीं है, कहीं से भी साइडों से बीच में नहीं लेना, तो ये सब बढ़ेंगे और जुल्फें बनेंगी। फिर अब जुल्फें बढ़ गई, अब भले आधे कान तक रखे, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़ा दें, लेकिन मेरी ये तरकीब होती है कि कम से कम जिंदगी में एक बार इतने बढ़ा लें कि कंधों से आपके टच हों, नीचे नहीं। इसको थोड़ा निगरानी करनी पड़ेगी कि नीचे नहीं जाने चाहिए, तो ये सुन्नत भी अदा हो जाए जीते जी, कम से कम एक बार। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कई बार रखे। तो अब जुल्फ में आते आएंगी, मदीना शरीफ जाता हूं तो बस वो हल्क उमरा शरीफ, फिर एक वापस आना शुरू हो जाते हैं बाल। लेकिन बुढ़ापे में हर चीज में रफ्तार कम होती है, बढ़ नहीं रहे जल्दी, ये नोट किया मैंने, बच्चों को जल्दी बढ़ जाते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर सैयदी गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का फरमान है, जब ये फना यानी ख़त्म होने वाली दुनिया भी बग़ैर मेहनत के नहीं मिलती, तो जन्नत जो कि हमेशा बाकी रहने वाली है वो बग़ैर मेहनत के कैसे मिलेगी। तो जन्नत पाने के लिए खूब इबादत और रियाजत कीजिए। आइए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुजूर सैयदी गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत बैत कराने से पहले तौबा भी कराते हैं। मदनी चैनल पे जो इस्लामी बहनें देख या सुन रही हैं वो भी चाहें तो मुरीद हो सकती हैं। मुरीद होने के लिए उन्हें शौहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अपने नाबालिग बच्चों को भी मुरीद कराना चाहिए और इसके लिए आप बच्चों के नाम सरपरस्त के नाम नंबर पर भेज सकते हैं, उन्हें भी मुरीद कर लिया जाएगा। अगर आप किसी सिलसिले में बैत हैं और चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले की बरकतें मिलें तो आप तालिब हो सकते हैं। आपके पीर साहब ही आपके पीर साहब रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन में जो आपके मुरीद होना चाहते हैं इन्हें अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का
اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج میں موجود ہوں پھانسی گھاٹ پہ دھوبی گھاٹ پہ. اور دھوبی گھاٹ کو پھانسی گھاٹ کیوں کہا؟ اصل میں یہاں پہ کچھ رسیاں دیکھ کر پھانسی گھاٹ یاد آ گیا. اور دوسرے یہاں پہ جتنے کپڑے دھل رہے ہیں نا اور جتنے کپڑے سوکھ رہے ہیں تو اس حساب سے ایسا لگتا ہے کہ خواتین نے کپڑے دھونا چھوڑ دیے ہیں. اور ظاہر ہے پھر جو مرد حضرات ہیں ان کا ہی گلا تنگ ہونا ہے کیونکہ بجٹ بڑھ جاتا ہے, پھر یہاں پہ پیسے دینے پڑتے ہیں, تو اس لیے پھانسی اس لیے یاد آ گئی. اچھا اب ہے نا یہ دھوبی گھاٹ پہ ہم کیوں آئے اور کیا کریں گے؟ اصل میں ٹاپک ہے اور کچھ بات کریں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پھانسی گھاٹ, تو یہ دھوبی گھاٹ, پھانسی گھاٹ, گھاٹ کا کیا مطلب ہے؟ گھاٹ کا مطلب ہے جسے بنا ہوا ہے, یہ ادھر گودیاں بنی ہوئی ہیں, رسیاں بندھی ہوئی ہیں, اس کو گھاٹ کہتا ہے. جمع ہے, سب کام کی جمع ہے گھاٹ. رسیاں بندھی ہوئی ہے. پھانسی گھاٹ پہ بھی رسی بندھی ہوتی ہے. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ نا جمعے کے دن جو ہے نا کپڑے نہیں دھونے چاہیے. آپ دھوتے ہیں کپڑے جمعے کے دن؟ جمعے کے دن ہم کام نہیں کرتے, وہ کام کرتے ہیں. اب دھلائی کا تو کام خیر بند ہو گیا سب, مگر جو ہے نا یہ جو کام ہے اب یہ جو دھلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن کپڑے دھوتے ہیں. دھوتے ہیں. تو خواتین کیوں نہیں دھوتی؟ یہ تو خیر اللہ جانتا ہے. آپ جمعے کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں پرانے پہنتے ہیں؟ نہیں پرانے, بھائی کیوں جھوٹ بولو کہ نئے کپڑے تو نہیں پہنتے, ایک دو دفعہ کے پہنے ہوتے میرے پاس کپڑے, ایک دو دفعہ کے پہنے ہوتے. کہ جمعے کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے. ہاں پہننے تو چاہیے, مگر کسی کی گنجائش ہے کسی کی نہیں ہے بھائی. اور نئے کپڑے کب پہنتے ہیں آپ؟ نہیں بھائی رمضانوں میں زیادہ نہیں پہنتا ہوں. رمضان میں پورے رمضان زیادہ ایک دو دفعہ کے پہنے. ابھی 5-6 سوٹ سلا کے رکھے ہیں رمضان کے لیے, 3-4 عید کے لیے سلا کے رکھے ہیں. شیخ اب سوال تو بنتے ہیں. سب سے پہلے یہ سوال کہ گھاٹ کا آخر مطلب کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے, تو یہ بھی ایک سوال ہے. اور ایک اور بات, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کپڑے نئے پہننے چاہیے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ بھی پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیز شیخ آپ ہی بتانا کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟ گھاٹ کے کئی معنی ہیں اور وہ لفظ کے ساتھ جہاں یہ شامل ہوگا نا اس کے مطابق اس کے معنی بنیں گے. اب جیسے کہ دھوبی گھاٹ, تو جہاں دھوبی کپڑے دھوتے ہیں, یہاں مقام جگہ یہ معنی مراد ہوگا کہ دھوبی گھاٹ یعنی کہ جہاں کپڑے دھوئے جاتے ہیں. پھانسی گھاٹ جہاں وہ مقام جہاں پھانسی لگائی جاتی ہے. تو یوں گھاٹ کے معنی تو یہ ہوئے. اچھا, اور جمعے کا آپ نے کیا کہا تو یہ مطلب اس کو ہم پہلے کتاب نسواں بولتے تھے. ایک وہ فرضی کہ یہ کتاب نسواں کا مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ عورتیں ہی کہہ رہی ہیں نا کہ جمعے کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے. نسواں یہ عورتیں, نسواں منے تو کپڑے جمعے کو بالکل دھونے 100% جائز ہیں. بلکہ جمعے کو عمدہ کپڑے پہن کر, دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز کے لیے جانا, اور جو نیا کپڑا ہو جمعے سے شروع کرنا, یہ بھی سنت ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بالکل غلط فہمی ہے. جمعے کو کپڑے بالکل, جب بدن دھوتے ہیں جمعے کو دھوتے ہیں نا, سنت ہے نا نہانا, نہانے میں بدن دھوتے ہیں, تو کپڑے دھونے میں کیا ہے, ستر چھپا کر دھونا اپنے آپ کو, غسل کرنا ہے تو ویسے ہی سنت ہے. اب جو کپڑا آپ نے پہنا, تہبند جو بھی پہنا ہوا ہے, تو یہ ساتھ میں دھلے گا کہ نہیں دھلے گا, یہ کیسے خشک رہے گا؟ تو بالکل یعنی کہ یہ بس چلی ہوئی ہے. پھر وہ سنی سنائی میں آ کر یہ دھوبی نے بھی کہا نا, پھر کچھ الفاظ بدلی ہو گئے کہ انہوں نے کہا نا کہ ہاں جمعے کو ہم نہیں دھوتے,
ये कहा इसमें, इस फिर आगे बोला कि हाथ धोते हैं, गालिबन ये भी कहा। हाँ तो घबरा गए होंगे ये। अच्छा यूं कहा नहीं धोते, तो ये भी किताब निस्वा में पढ़कर मुतासिर हो गए क्या? तो ये किताब निस्वा की न माने, समझे, हदीस और कुरान की माने। तो कुरान हदीस में कहीं इसकी मुमारत नहीं, कभी उलमा ने इसका मना नहीं फरमाया, कोई हरज नहीं है, कपड़े धो सकते हैं। अच्छा तो भाई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा भी आ गया, जुम्मे के दिन कपड़े धोने की कोई किसी किस्म की मुमानत नहीं है। इस दिन भी कपड़े धोना शरन बिल्कुल जायज है। सब पर लाजिम है कि दीनी अहकाम सीखकर उसके मुताबिक अमल किया करें और हर सुनी सुनाई बात आगे ना पहुंचाया करें। और यह भी याद रहे कि दीनी शरई मसाइल अपनी अटकल से बताना तो बिल्कुल भी जायज नहीं, लिहाजा मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए। अपनी अटकल मतलब अपनी अटकल पच्चू, अपनी सोच के मुताबिक, कुरान हदीस को एक तरफ रखकर जो अपनी मोटी अक्ल में आया वही दाग दिया, तो मसला बना लिया उसको, ऐसा ना क्या करें, उलमा से पूछ लिया करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया कपड़ा ज़ेबे तन फरमाते यानी पहनते तो उसे जुम्मा के दिन पहनते थे, तो ना जुम्मा को नया कपड़ा पहनना सुन्नत। हवाला अखलाकुन नबी व आदाबी, हदीस नंबर 257। फैजुल कदीर में है, चूंकि जुम्मा का दिन तमाम हफ्तों से है, चूंकि जुम्मा का दिन तमाम हफ्ते में अफजल दिन है, लिहाजा इस दिन नया कपड़ा पहनने से इस कपड़े और पहनने वाले को बरकत नसीब होगी। हवाला फैजुल कदीर जिल्द 5 सफ़ा 98। तो जुम्मा जो है वो सैयदुल अय्याम, एक हदीस में कहा गया कि दिनों का सरदार, डेज यानी दिनों का, दिन जितने भी दिन है वीक में, तो सब का सरदार जो है वो जुमा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस वक्त में सखर फैजान मदीना में हूँ, जेकबा से आए हूँ और 1 माह का माशाल्लाह हम एतकाफ कर रहे हैं। हमने पहले भी अपने गांव में एतकाफ किया था, लेकिन वहाँ वो एतकाफ की वो रूहानियत, वो फैज हमें हासिल नहीं हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दावत इस्लामी के फैजान मदीना सखर में हमने जो एतकाफ किया है। यहाँ जितनी बरकतें, जितने अल्हम्दुलिल्लाह सहरी और इफ्तारी में दुआएं हो रही हैं और आशिक़ाए रसूल के साथ सुन्नतें सीखने के हल्के लगते हैं और खूब दुआएं सीखते हैं। मेरा नाम है शकील अहमद अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह इधर एतकाफ में बैठ के बड़ा मजा है माशाल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं इमामा भी बनूंगा, इमामे की नियत की है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एतकाफ की बदौलत से इल्म दीन हासिल करने, फ़र्ज उलूम सीखने और कुरान पाक को दुरुस्त मुहारिफ के साथ पढ़ने के लिए हमें मदनी कायदा सिखाया गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत से मेरा ये सवाल था कि जैसे मोबाइल में गेम आए हुए हैं जिसमें आप पैसे लगाएं और पैसे कमाएं, जैसे ट्रेंडिंग है उसमें मार्केट होती है अप डाउन, उसमें आप डॉलर लगाएं, डॉलर के हिसाब से पैसे कमाएं, तो ये पैसे कैसा कमाना, ये हलाल है या हराम है? गेम्स तो अगर गेम्स की बात करेंगे तो वैसे ही वो तो अपने लहव लईब होने के एतबार से उसकी तो ममानत और अदम जवाज़ अलग है, नाजायज़ होना अलग है। ये जो जिन ऐप्स की बात कर रहे हैं कि मोबाइल में इस तरह की ऐप्स आती हैं, तो ये अलग अलग इसकी सूरतें होती हैं, लेकिन उमूमी तौर पर इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो शराइत होती हैं, वो ये बातिल और ख़िलाफ़ शरा उमूर पर मबनी होती हैं। और ये जो ट्रेडिंग के बारे में इस तरह पूछ रहे हैं, तो ये उमूमी तौर पर ट्रेडिंग में जुए की सूरतें शामिल होती हैं, रिश्वत की सूरतें शामिल होती हैं। ये मैं एक उमूमी जवाब के एतबार से अर्ज़ कर रहा हूँ। बाकी
خاص کسی ایپ کے حوالے سے اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی مکمل ڈیٹیل یہ دارالفتہ اہل سنت میں بتائیں گے تو اس کے بعد اس کا جواب دیا جا سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، کون سے نبی علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ سوال نمبر 2، مدینہ منورہ میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ سوال نمبر 3، امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز بغیر امامے کے کتنی نمازوں سے بہتر ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. عثمان رضا یوٹیوب چینل پر یہ سوال کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے مقدس اوراق کے باکس میں صحیح قرآن پاک یا کوئی دوسری دینی کتاب دیکھی تو کیا وہ اسے وہاں سے اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ لقطہ ہوا نا کہ ہو سکتا ہے کسی نے اٹھا کر اندر کسی کو ملی ہو کتاب، وہ دینی کتاب ہے، چوم کے اندر ڈال دی ہو. تو بہرحال لے کے اس کا چونکہ کچھ پتہ نہیں اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ دینی کتاب نئی یا قرآن کریم بالکل درست ہے، درست قرآن شریف. بہرحال وہ جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. تو اب یہ کہ اس میں کیوں رکھے گا، تو اس لیے وہ لقطہ کہ اس کا مالک تلاش کریں، مالک ملنے کی امید نہ رہے. تو اب یہ کہ اس کو خود فقیر ہے شرعن تو خود رکھ لے، یا کسی شریف فقیر کو دے دے، یا اس کو مطلب یعنی کہ مدرسے میں مسجد میں بھی دے سکتے ہیں. سید اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے گھروں میں دینی کتاب ہوتی ہے تو اس کو وہ مقدس اوراق میں بھجوا دیتے ہیں، تو کیا وہ لے سکتا ہے بندہ اگر مقدس اوراق میں اس طرح سے رکھی ہے؟ کنفرم پتا ہے کہ مالک کا کہ اس نے دیے اور آپ نے پوچھ لیا کہ آپ نے میں نے ڈال دی، ضرورت نہیں تھی. تو اب ظاہر ہے کہ جو چاہے لے لے. ٹھنڈی کرنے سے تو بہتر ہے کہ اس کا استفادہ کرے جبکہ وہ ہو دینی کتاب اور درست. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی جگہ پر دینی کتاب بھول گیا یا قرآن پاک بھول گیا، سفر میں ساتھ لے کر چل رہا تھا، خرید کے لایا تھا، کہیں چھوڑ کے چلا گیا، بھول گیا، تو مالک نہیں مل رہا ہوتا تو پھر لوگ مقدس اوراق میں ڈال دیتے ہیں، وہاں رکھ دیتے ہیں. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے. اباحت والی صورت بھی ممکن ہے، لیکن یہ ایک صورت شاذ ہے. ایک اباحت والی صورت ہو کہ جو لے جائے اس کے لیے ہے یہ. تو مقدس اوراق میں بطور اباحت ڈالنا یہ ذرا شاذ معلوم ہوتا ہے. اباحت اور شاذ اب ان کو سمجھاتے ہیں. آپ سمجھانا تو پڑے گا نا، ہم تو بیٹھے ہی سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انتہا درجے کی قلیل ہے کہ اس طرح اس طور پر ہو کہ کوئی آدمی
اس طور پر مقدس اوراق میں ڈال دے کہ جو حاصل کرنا چاہے، جو اس کی طرف سبقت کرے بڑھے، جو لینا چاہے وہ اس کو لے لے، ایسا بہت قلیل ہے ہونا، بہت کم مطلب اس کے چانس ہے. جی جی قلیل پردل، بہت کم چانس ہے. بہت کم چانس ہے. اور مسجد میں بھی لوگ دینی کتابیں رکھ جاتے ہیں، سمجھے؟ تو وہ ممکن ہے خادم صاحب نے سمیٹ کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں دینی کتابیں، لوگ پڑھنی نہیں ہوتی تو وہی مسجد میں رکھ دو ادب کی جگہ میں. لیکن یہ بہرحال ہے، رواج ہے، یعنی صاحب فرما رہے ہیں قلیل ہے، لیکن یہ کئی علاقوں میں رواج ہے. اچھا. یعنی بڑی بڑی کتابیں یہ پورے ڈھیر اٹھا کے اپنے گھر کے اس طرح ڈال جاتے ہیں. قرآن کم ڈالتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید عام طور پہ مسجد میں رکھ جاتے ہیں، لیکن یہ کتابوں کے پورے تھپے اٹھا کے یوں مقدس اوراق کے اندر جو پڑھتا تھا وہ ہو سکتا ہے فوت ہو گیا، اب پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کو ٹھنڈا کرو، یا جو پڑھے جو لے جائے. لیکن اب وہی ہے کہ کنفرم کرنا مشکل ہے اس حوالے سے، تو وہ فی الحال تو یہ لقطے والا حکم ہی سمجھ آتا ہے اس کا. اسی لیے وہ لقطے ہی کو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کے دیوانوں رمضان کریم مبارک ہو، اے روزہ داروں مستانوں، اے روزہ داروں مستانوں رمضان. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، حضور اگر کوئی شخص ہمیں تحفہ دے اور اس بات کی تاکید کرے کہ آپ نے یہ تحفہ کسی کو نہیں دینا، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے اس وقت یہ نیت کر لی کہ ہم یہ کسی کو نہ دیں گے، لیکن بعد میں کیا ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں، ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. تحفے میں شرط باطل ہوتی ہے، یعنی کسی کو کہہ دیا کہ دیکھو آپ خود ہی استعمال کرنا، تو وہ اگر چپ چاپ لے لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو قبضہ تو ہو گیا، ہبہ تو مکمل کمپلیٹ ہو گیا، ہبہ تام ہو گیا. ہبہ مانے گفٹ. تو اب یہ کہ شرط باطل کہ آپ استعمال کرنا. ہاں اگر اس نے کہہ دیا کہ بالکل میں استعمال کروں گا، تو اب یہاں اس کا کہنا جو ہے یہ وعدے کے اس میں آئے گا نا. ہاں تو اب یہ کہ اس کو یہ پورا کرنا ہوگا وعدہ یا نہیں. ہاں وہ پھر اس کے احکام جدا، اس وقت جب نیت تھی، بعد میں یہ بھلے اس کو. یوٹیوب چینل پر محمد حسنین ہیں ملتان سے، ان کا تعلق ہے. سوال کر رہے ہیں کہ اگر دینی کتاب گر جائے، زمین پر آ جائے، تو کیا نماز اگر پڑھ رہے ہو اور کیا نماز توڑ کر اس کو اٹھا سکتے ہیں، یا کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ کل بھی ہوا تھا یہ مسئلہ. تو یہی مطلب طے ہوا تھا کہ نماز پڑھنے میں اس کتاب کو اٹھانا نہیں ہے، نماز توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے. اس ہفتے کون سا رسالہ ہے اور سنتے ہیں اس حوالے سے دعائے امیر اہل سنت. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور مجھے کوئی بھی دن یا رات قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر گزارنا پسند نہیں. یا رب کریم، جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ سکون بخش آیتیں پڑھ یا سن لے، اس کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر دے، اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب
دستیاب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ۔ دیکھو فیصلہ آباد والوں نے بھی ہاتھ میں لیا ہوا ہے رسالہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والوں نے بھی لیا ہوا ہے ہاتھ میں، ان کو بھی دکھا دیا جائے۔ ماشاء اللہ، فیصلہ آباد والوں کے زیادہ ہیں، کراچی والوں سے جیت گئی ہے رسالہ اٹھانے میں۔ یہ کراچی والے ہاں کم میں ہار گئے، وہ جیت گئے۔ فیصلہ آباد میں میرا ہی ہے، جہاں بھی دعوت اسلامی ہے میری ہے، میں دعوت اسلامی والا ہوں اور دعوت اسلامی والوں کا ہوں۔ ماشاء اللہ، چلو آئندہ مت ہارنا، اب ہرا دینا آئندہ فیصلہ آباد کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آئیے اس حوالے سے جو قرآن اندازی کی ویڈیو ہے دیکھتے ہیں. 6 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کسی نے درخت لگایا اور اس میں سے انسان، پرندے یا جانور نے کھایا تو یہ درخت لگانے والے کے لیے کیا ہے؟ جواب صدقہ. سوال نمبر 2، صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا نام بتائیے. جواب قادری منزل. سوال نمبر 3، مردے کا حال قبر میں کس انسان کی مانند ہوتا ہے؟ جواب ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: وسیم علی اتاری ملیر کراچی، بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد، محمد عرفان اتاری بن احمد علی چک نمبر 25 سانگڑ، اسید رضا اتاری راول پنڈی، بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت معین الدین اتاریہ اورنگی ٹاؤن کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاء اللہ الکریم. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ چل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. ابھی جاری ہے سلسلہ، بیٹھے رہیے گا. ابھی تو نعتیں بھی سننی ہے نا آپ کو انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو ایک کمال کی چیز دکھانی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. رب کی عنایت ہے رمضان، بندوں کی زینت ہے رمضان، کنجی سعادت ہے رمضان، نیکی کی ہدایت ہے رمضان. جی آپ نے دیکھا دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کمال کا منظر ہے. ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں. اعتکاف کی بہاریں ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ ان کو صبح اور شام یعنی سحری اور افطاری میں کھانا پیش کیا جا رہا ہے. اور کھانا کھلانے کے فضائل تو کمال کے ہیں. ایسی پیاری حدیثیں ہیں، سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام. تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اور پانی پلایا کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ عز و جل کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو عام دنوں میں کھانا کھلانے کے فضائل ہیں. ماہ رمضان میں تو نیکیوں کا اجر اور بڑھا دیا جاتا ہے. اور اگر وہ کھانا ہم یہاں عالمی مدنی مرکز میں علم دین سیکھنے آنے والوں کو کھلائیں تو پھر تو نور علی نور ہو جائے گا. تو جناب اب آپ کو بھی یہ نیکی کمانے کا موقع مل رہا ہے. آگے بڑھیے اور اس خوبصورت اعتکاف میں یہاں آنے والے عاشقان رسول کے لیے اپنا حصہ ملائیے. ہم نے ایک حساب لگایا ہے ناظرین، تقریباً 250 روپے کا ایک میل بنتی ہے، یعنی ایک وقت کا کھانا کسی ایک عاشق رسول کو کھلایا
نے حساب کتاب کیا تو یہ کم و بیش 250 روپے بنتے ہیں. اب آپ ذرا حساب کریں کہ 5000 عاشقان رسول کا روزانہ کھانا بن رہا ہے, سحری میں بھی اور افطار کے بعد جو رات کو ڈنر کروایا جاتا ہے, تو آل ٹو گیدر تقریباً 10,000 لوگوں کا کھانا روزانہ بن رہا ہے, یعنی 10,000 میلز روزانہ سرو کی جا رہی ہیں. پہلے 20 دن کا حساب کریں تو تقریباً 2 لاکھ میلز بن جاتی ہیں. ہمیں بہت امید ہے کہ آخری عشرے میں یہ تعداد 8,000 تک پہنچ جائے گی, تو پھر روزانہ تقریباً 16,000 لوگوں کا کھانا بنے گا سحری اور افطاری میں, یعنی صبح اور رات کو. لیکن یہ کل ملا کے 10 دن کے تقریباً 1,60,000 میلز بن جائیں گی. آل ٹو گیدر پورے مہینے میں تقریباً 3,60,000 لوگوں کا کھانا بنے گا اور یہ 3,60,000 میلز سرو کی جائیں گی. تو آگے بڑھیے, سبحان اللہ, مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی اور وہ بھی ماہ رمضان میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کیجئے. آپ جو رقم جمع کروانا چاہتے ہیں وہ ان اکاؤنٹ میں جمع کرا دیجئے اور ہمیں ساتھ اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کروا کر ان نمبر پر اپنی سلپ بھی بھیج دیجئے تاکہ یہ رقم رمضان میں ہونے والے اعتکاف میں خرچ کی جا سکے. اور ہاں, یہ بھی یاد رہے کہ اس رقم میں آپ نے زکوٰۃ کی رقم شامل نہیں کرنی ہے, اس میں نفلی صدقات عطا فرمائیں. اور آپ میں سے اگر کچھ عاشقان رسول ان کھانے پینے کے معاملات میں اگر کچھ اجناس, کچھ سامان بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ان نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یاد رہے, راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. رب کریم ماہ رمضان کی ساعتوں میں ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی کی ہدایت ہے رمضان. الحمدللہ یہ جو ترغیب ملی ہے رکن شورا جی عبدالعزیز بھائی نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. تو جس طرح آپ خود بھی دیکھتے ہی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ دعوت اسلامی کے تحت یہ عظیم الشان اعتکاف کا جو سلسلہ ہے تو اس میں بالکل ہم سب نے حصہ لینا چاہیے اور کنٹینیوسلی چونکہ یہ سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا. ویسے بھی پورا سال ہی فیضان مدینہ میں یہ بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو لنگر رضویہ کا یہ اکاؤنٹ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ضرور اپنا حصہ شامل کیجئے اور جس طرح اس کی پوری کیلکولیشن ہم نے آج سنی ہے تو اپنی جو حیثیت ہو بلکہ اس کی اور بھی ایسے افراد سے رابطہ کر کے جو اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں تو بالکل اپنا شامل حصہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں ان کو بھی حصہ ڈالنے کی اجازت ہے, لہذا وہ بھی اگر چاہیں تو اسٹالز لگے ہیں, باکسز بھی لگے ہوئے ہیں جس پہ لنگر رضویہ بھی لکھا ہوا ہے, تو آپ اس میں بھی چاہیں تو اپنا حصے کی رقم ڈال سکتے ہیں. اچھا, یہ سارا رمضان میں خرچ ہو جائے گا؟ اگر بچ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ جنہوں نے دیا ان کو واپس دینا ہے. یہ بھی ایک ترغیب میں جملہ رہ گیا شاید کہ اس رقم کو ہم اگر بچنے کی صورت میں جو ہے وہ چونکہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے لہذا لنگر رضویہ کا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کنٹینیو ہمارا جاری رہتا ہے. تو اس میں اگر خاص رمضان کے لیے دینا ہے تو آپ مینشن کرا دیں اور لنگر رضویہ میں شامل کرتے ہیں تو یہ پورا سال جو بھی یہ سلسلہ کھلانے پلانے کا ہے تو اس میں یہ رقم خرچ کی جا سکے گی انشاءاللہ. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نعت شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل
قدس کا گلے رنگی ادا کہوں گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں